Hi friends, welcome back. So until now we have seen eligibility and conditions for taking ITC. So we are eligible to take ITC when we are registered under GST, plus the goods and services should be used for business purpose in order to avail ITC on them. So these were the two conditions for eligibility, and then we studied the conditions for ITC. So first of all we should be eligible to take ITC, and then we need to look at the conditions to take ITC. So what are the conditions to take ITC? Number one, we should be in possession of tax paying document. Number two, goods and services should have been actually received, but there was an exception to it, that is bill to ship to model. Number three, filing of return. A person taking ITC should file his return. Number four, the tax paid should have been actually paid to the government, means the tax paid by you, means the buyer, to the supplier, to the seller, should have been actually paid to the government. So these were the four conditions. Plus under the fourth condition we saw an additional provision that if the invoices have not been uploaded, that is if some of the invoices have not been uploaded by the seller, then we are not able to take ITC on them. But government says that we are not disallowing the full ITC, but what you can take is eligible ITC plus 20% or the total ITC, that is the total input tax paid by you to the seller, whichever is lower you can avail as ITC in your electronic credit ledger. So this is what we have learned until now. Yes, let's move forward. Now we will study goods received in lots. Friends, कई बार क्या होता है, सपोज मैंने मेरे सप्लायर को ऑर्डर किया मटेरियल एक्स, ठीक है, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं उसमें एक मटेरियल लगता है जिसका नाम है मटेरियल एक्स. मुझे वो मटेरियल एक्स चाहिए 6000 kgs. मेरा जो सेलर है, सप्लायर है, उसने मुझसे कहा कि मेरा मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी ही 2000 kgs है. ठीक है, मैंने कहा ओके, तो 3 महीने में देना, 2000 एक महीने में, 2000 दूसरे महीने में, 2000 तीसरे महीने में. उसने कहा फाइन. अब ये ट्रांजैक्शन हुआ जनवरी में. उसने जनवरी में मुझे बिल भी दे दिया और मैंने उसको जनवरी में पेमेंट भी दे दिया पूरे 6000 kgs का. अभी जो 6000 kgs है, मान लीजिए उसका प्राइस है 6 लाख और उस पर 5% GST लगा, दैट इज 30,000 रुपीज. तो मैंने 6,30,000 का पूरा इनवॉइस का पेमेंट उसको कर दिया. क्वेश्चन ये है कि मैंने गुड्स रिसीव नहीं किए हैं अभी तक, मैंने केवल 2000 kgs रिसीव किए हैं. जनवरी है इसीलिए फेब में 2000 रिसीव करूंगा और थर्ड मंथ मार्च में और 2000 रिसीव करूंगा. मतलब मेरा टोटल ऑर्डर ऑफ 6000 kgs मुझे पूरा का पूरा कब रिसीव होगा? मार्च मंथ में. तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं ITC आज ले सकता हूं पूरी की पूरी, या फिर 3 महीने बाद मार्च में ले पाऊंगा? तो CGST लॉ क्या कहता है? CGST लॉ ये कहता है कि when you are receiving goods in lots, मतलब आपको गुड्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, लॉट्स में आ रहे हैं. जैसे हमारे केस में 2000 kgs in Jan, 2000 kgs in Feb and 2000 kgs in March. तो इस केस में जब मार्च में मैं लास्ट लॉट रिसीव करूंगा तभी ही मैं इस बिल की ITC ले पाऊंगा. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? मैं कब ले पाऊंगा ITC? ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, इवन दो I have made the payment in January. ठीक है, रीड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. In case the goods covered under an invoice are not received in single consignment. क्या लिखा है? Not received in single consignment but are received in lots. The ITC can be taken only upon receipt of last lot. ठीक है, ITC कब ले सकते हैं? ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट. इलस्ट्रेशन, अ कंसाइनमेंट ऑफ कोल इज टू बी डिस्पैच्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई यूजिंग 5 trucks. An invoice was issued to the recipient on 30th March 2018. 4 trucks reached the claimant by March 30, but the truck carrying the final lot reached the recipient only on April 2. तो क्या मैं मार्च में ITC ले पाऊंगा? नहीं, क्योंकि लास्ट लॉट कब आया? अप्रैल में. तो मैं ITC कब ले पाऊंगा? अप्रैल 2018 में. लिखा है कंसाइनमेंट कैन बी अवेल्ड
credit, tax credit for the entire consignment can be availed only in the month of April 2018. Next example, XYZ enters into a contract with ABC for supply of 10 metric ton of chemical for 1,18,000 inclusive of GST 18,000. The chemical is to be delivered in lots over a period of 3 months. एक साथ नहीं आ रहा है, 3 महीने में आने वाला है in 3 lots. Though XYZ paid the full tax as early as August, it can take the ITC of same only on receipt of last installment of chemical in the month of November. Clear है? Next concept, time limit for availing ITC. ये टाइम लिमिट ऑफ फॉर अवेलिंग ITC समझने से पहले हम थोड़ा रिटर्न्स के बारे में और समझेंगे. फ्रेंड्स, रिटर्न्स में एक होता है मंथली रिटर्न, एक होता है एनुअल रिटर्न. मंथली रिटर्न मतलब जो मैंने सपोज जैन चल रहा है, ठीक है, तो 1 जैन से 31 जैन तक जो भी परचेज या सेल की है उसका रिटर्न मैं भर सकता हूं 20 फेब तक. मतलब जैन का रिटर्न कब भरेंगे? फेब में. उसी तरीके से जो सेल या परचेज मैंने 1 फेब से 29 फेब तक की होगी उसका रिटर्न, मतलब आउटपुट की डिटेल्स और इनपुट की डिटेल्स, उसका रिटर्न कब भर सकता हूं मैं? 28 मार्च तक. जो सेल और परचेज मैंने 1 मार्च से 31 मार्च के बीच की होगी उसका रिटर्न मैं कब तक भर सकता हूं? 28 अप्रैल तक. मतलब हर महीने का रिटर्न कब तक फाइल किया जा सकता है? नेक्स्ट मंथ की 20th डेट तक. इसको बोलते हैं हम मंथली रिटर्न. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब बात आती है एनुअल रिटर्न की. जो भी डेटा हमने सबमिट किया अप्रैल 1 से मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेके मान लेते हैं 31 मार्च 2020 तक हमने जो भी डेटा सबमिट किया है रिटर्न्स में, मंथली रिटर्न्स में जो भी डेटा सबमिट किया पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक, इस पूरे डेटा का एक कंबाइंड एनुअल रिटर्न बनता है. वो रिटर्न साल में एक ही बार भरना होता है और उस रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 का एनुअल रिटर्न हम कब तक भर सकते हैं? उसको भर सकते हैं हम 31 दिसंबर 2020, मतलब 31 मार्च ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये फाइनेंशियल ईयर है 1920. इसका सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? वो होगा 2021, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से. तो ये जो 1920 है इसका एनुअल रिटर्न हम कब भर सकते हैं? 31 दिसंबर 2020 तक. डेट्स में क्लैरिटी है? मंथली रिटर्न कब बढ़ते हैं? नेक्स्ट मंथ की 20th तक. एनुअल रिटर्न कब बढ़ते हैं? सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च दिसंबर तक. मतलब 19-20 का कब भरेंगे? 31 दिसंबर 2020. 18-19 का कब भरेंगे? 31 दिसंबर 2019. क्लियर है इतना? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे.
टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इनवॉइस आया 1 मई को, ठीक है। अब उसकी जो आईटीसी है वो आप कब तक ले सकते हो? आपने मई का रिटर्न भरा जून में 20 जून को, तो क्या मई की आईटीसी 20 जून वाले जो आपने मई का रिटर्न भरा 20 जून को उसमें ले सकते हैं? ले सकते हैं। उसमें भूल गए तो जो नेक्स्ट मंथ का रिटर्न भरेंगे 20 जुलाई को, जून का रिटर्न भरेंगे 20 जुलाई को, क्या उसमें ले सकते हैं? ले सकते हैं। अगस्त के रिटर्न में ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर जुलाई में भी भूल गया तो ऐसे कब तक मैं अपना जो इनवॉइस है जिसका मैंने टैक्स पे किया है उसकी आईटीसी में आखिर कब तक ले सकता हूं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट डिफाइन की है। वो टाइम लिमिट क्या है? ड्यू डेट of the return of September of succeeding financial year or actual date of filing of annual return whichever is earlier। कहने का मतलब ये है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर मेरे पास कोई इनवॉइस आया 1 मई 2019 को, ध्यान से सुनना, इनवॉइस कब आया? 1 मई 2019 को, तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? ये फाइनेंशियल ईयर हुआ 1920। मतलब सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2021। तो ये जो मई में इनवॉइस आया उसकी लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी कौन सी होगी? ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ सितंबर। सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट कौन सी होती है? 20 अक्टूबर। सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट कौन सी होगी? 20 अक्टूबर। लेकिन 20 अक्टूबर कौन सी? 20 अक्टूबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब 19-20 का सितंबर नहीं, 20-21 का सितंबर। 20-21 के सितंबर की ड्यू डेट, 20-21 के सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो एक ये आ गई 20 अक्टूबर 2020 हमारे इस केस के लिए। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ सितंबर फॉर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर के सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट, या फिर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। मतलब मेरा एनुअल रिटर्न में कब तक भर सकता हूँ? 19-20 का। 19-20 का एनुअल रिटर्न कब तक भर सकता हूँ? 31 दिसंबर 2020 तक। अब सपोज मैंने अपना रिटर्न भर दिया 30 जुलाई 2020 तक। ठीक है, तो 30 जुलाई 2020 और 20 अक्टूबर 2020 विच एवर इज अर्लियर। तो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी कौन सी होगी? 30 जुलाई 2020। सपोज 30 जुलाई को नहीं भरा, मैंने अपना रिटर्न भरा 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर तो कौन सा हुआ? 20 अक्टूबर 2020। तो मेरी लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी कौन सी होगी? 20 अक्टूबर 2020। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? इस पे एग्जांपल से हम एग्जांपल देखेंगे।
लेकिन ये क्या है, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, मतलब लास्ट डेट कौन सी है जब आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। अगर आप आईटीसी अवेल करना भूल गए हो, ठीक है, इनवॉइस है, लेकिन आपको सपोज 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में कोई भी इनवॉइस आया, ठीक है, 31 मार्च 20 तक कोई भी इनवॉइस आया, सपोज आपके पास 30 मार्च 2020 को इनवॉइस आया, ठीक है, तो उस इनवॉइस को आप आईटीसी लेना भूल गए। अप्रैल में आपने जब रिटर्न फाइल किया 31 मार्च 2020 का, यानी मार्च 2020 का रिटर्न जब आपने फाइल किया 20 अप्रैल 2020 को, तब आप कुछ इनवॉइसेस की आईटीसी लेना भूल गए और वो इनवॉइस आपको मिली से सपोज जुलाई में। तो क्या आपके पास टाइम है अभी भी उस आईटीसी को लेने का? है, अगर आपने जुलाई तक आपका एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। सपोज आपने आपका एनुअल रिटर्न जुलाई तक फाइल नहीं किया है, आपने आपका एनुअल रिटर्न कब फाइल किया? दिसंबर में, और आपको इनवॉइस कब मिल गया? जुलाई में। इनवॉइस मार्च का है लेकिन मिला कब? जुलाई में मिला। तो उसकी क्रेडिट क्या आप ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि वो अक्टूबर से पहले है, 20 अक्टूबर से पहले, ड्यू डेट से पहले है, सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट से पहले है। बिल्कुल है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल है। ड्यू डेट फॉर द रिटर्न ऑफ सितंबर of succeeding financial year or date of filing of annual return whichever is earlier। तब तक आप क्या ले सकते हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन से इनवॉइसेस की इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो इनवॉइसेस 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच आए हैं उनकी। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं। This is 1, this is 2. Mr. X filed his annual return for 2018-19 on 30/6/2019। 30 जून 2019 को उन्होंने क्या भर दिया? एनुअल रिटर्न। भरना कब था? दिसंबर तक भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जल्दी भर दिया, 30 जून को भर दिया। He filed his return for the month of September on 20th October। ठीक है, 20th अक्टूबर को भरना होता है, तो 20th अक्टूबर को भर दिया। ठीक है। State the last date on which ITC can be availed for the year 18-19। लास्ट डेट बताइए कि वो जो 18-19 में उनके पास इनवॉइसेस आए हैं उनकी आईटीसी को लास्ट कब तक ले सकते हैं? तो ड्यू डेट फॉर द रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 18-19 का जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 19-20। और 19-20 का सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट कौन सी होगी? 20th अक्टूबर 2019। ठीक है, 18-19 मतलब 31 मार्च 19 के बाद में जो सितंबर आता है उस सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट कौन सी होगी? 20th अक्टूबर 2019। तो वो ड्यू डेट हुई सितंबर के महीने की, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 36 विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर क्या हुआ? 36/2019। तो दैट इज द लास्ट डेट ऑन विच यू कैन अवेल आईटीसी फॉर द इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू 18-19। Next, Mr. X filed his annual return for the year 2018-19 on 30 नवंबर 2019 को एनुअल रिटर्न भरा। कौन सा? 18-19 का। He filed his return for the month of September on 15th October। रिटर्न फॉर द सितंबर कब भरा? 15 अक्टूबर को। State the date on which ITC can be availed। तो 15th अक्टूबर और 30th नवंबर whichever is earlier, that is 15th अक्टूबर। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? 15th अक्टूबर वुड बी द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी, क्योंकि एनुअल रिटर्न कब भरा? सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट के बाद 30 नवंबर को एनुअल रिटर्न भरा, इसीलिए 15 अक्टूबर वुड बी द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी फॉर द ईयर 18-19।